Good morning students, how are you? I hope you are very well at your home. Now we are going to start chapter number 11, our environment. This is class of social science and this is class of 5th class. Okay, chapter number 11, our environment. So in this class we will study about the environment, what is environment, what things are included in environment, and how are we polluting to the environment, and what measures should be taken to protect our environment. ठीक है. Now first of all we should know what is environment. वातावरण क्या होता है, environment क्या होता है. Meaning of environment. Environment means and includes all living and non-living things. All living and non-living things. Yeah, living and non-living things. Living and non-living things क्या होती है? The things that has life, that can grow, that can move, that thing is called living thing, जिसमें जान होती है. And non-living thing means the thing that has not life, जिसके अंदर लाइफ नहीं होती, that cannot grow, that cannot move, ठीक है, that cannot breathe, that thing is called non-living thing. That's why these are things are called non-living things. For example, living things like animals, birds, so these are the living things. Trees are also living things. Non-living things है like चेयर हो गई, टेबल हो गया, these things, sunlight है, air है, these are the non-living things. Clear? So environment includes all living and non-living things. Clear? And then second, living things. To living things, living things depend on the non-living things for survival. Survival means जिंदा रहने के लिए जो living things हैं वो non-living things पे depend करती हैं. How? For example, all plants and animals and human beings are included in living things. These are the living things and these things need air, water and sunlight to survive and grow. अब इन्हें जिंदा रहने के लिए और बढ़ने फूलने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए, वाटर चाहिए एंड सनलाइट चाहिए. Without air, water and sunlight we cannot imagine the life of the living beings. So that's why in this way living things depend on the non-living things for the survival. And then we look at this picture. These are the living things. Human beings हैं, birds हैं, animals हैं, fishes देखिए, trees हैं. These are the living things because these things have life and they can grow, they can move and they can breathe also. So these are things are living things and they depend on the non-living things. Next, non-living things. Non-living things include houses, buildings, toys, etc. Cars, cycle. Look at this picture. These are the non-living things because they have not life. इनके अंदर लाइफ नहीं है. They cannot breathe, they cannot move. देखो ये टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? अपने आप नहीं जा सकता है. अगर कोई ह्यूमन बॉडी फोर्स लगाएगी तब जी जाएगा. ठीक है. सो ये आगे इससे आगे ऊपर बढ़ेगा भी नहीं. सो दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स बट दीज things are also included in the environment. So living and non-living things both includes in the environment. Clear? And then आपको पता ही है कि ह्यूमन बीइंग इतना ग्रेडी बन चुका है, इतना लालची बन चुका है कि वो एनवायरनमेंट को बिल्कुल तहस नहस कर रहा है. ठीक है. तो आजकल क्या करना चाहिए हमें कि हम इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट? हम अपने वातावरण को कैसे बचा सकते हैं? तो देयर आर सम पॉइंट्स दैट वी शुड फॉलो टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. फर्स्ट इज डोंट थ्रो वेस्ट और हाउस होल्ड गार्बेज इन स्ट्रीट्स एंड ओपन ड्रेन्स. ठीक है. तो हमें जो हमारा वेस्ट है, मटेरियल है, किचन वेस्ट मटेरियल है, वो स्ट्रीट्स पे नहीं फेंकना चाहिए या जो ओपन नालियाँ हैं, ड्रेन्स हैं, उनमें नहीं फेंकना चाहिए. नंबर सेकंड, डोंट यूज रोड, स्ट्रीट्स और अदर पब्लिक प्लेसेस एज टॉयलेट. ठीक है. टॉयलेट के रूप में यूज़ मत करो. आप प्रॉपर एक जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं या रेलवे में बने होते हैं, आप बाहर जाते हो तो वो यूज़ कर सकते हैं. नंबर थर्ड, यूज़ पेपर और क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग्स. तो प्लास्टिक बैग्स एंड पॉलीथीन नहीं यूज़ करनी चाहिए. इसकी जगह पे हमें क्लॉथ बैग्स यूज़ करने चाहिए. फॉर एग्जांपल हम मार्केट जा रहे हैं तो वहाँ पे वेजिटेबल लेने जा रहे हैं या क्लॉथ्स लेने जा रहे हैं तो हमें अपने घर से एक कपड़े का बना हुआ बैग लेकर जाना चाहिए. नंबर फोर्थ, डोंट अलाउ वाटर टू स्टैंड इन ड्रेन्स और इन कूलर्स. तो आज जैसे अभी गर्मी चली गई है और सर्दी आ रही है तो हमारे घर में जो कूलर्स पड़ी हैं उनमें पानी वैसे का वैसे ही रहता है कई घरों में, तो उन्हें निकाल देना चाहिए बिकॉज
दैट प्लेस इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर द मॉस्किटोज। तो वहाँ से डिजीजेस पैदा होती हैं, बीमारियाँ पैदा होती हैं मॉस्किटोज से। ओके, सो बाय फॉलोइंग दीज पॉइंट्स वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, वी कैन क्लीन आवर एनवायरनमेंट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्ट। वेस्ट, व्हाट इज वेस्ट? वेस्ट क्या होता है? तो वेस्ट इज थिंग दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस नाउ, जो हमारे लिए अभी यूजफुल नहीं है, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेस्ट। So there are the two types of the wastes: biodegradable waste and non-biodegradable waste. So first of all, we will discuss about the biodegradable waste. Biodegradable waste consists of leftover food, peels of vegetables and fruits and petals. ठीक है, तो ये किसका बना होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसका बना होता है? जो हमारा बचा कुछ भोजन होता है, जहाँ पर हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, उनके छिलके होते हैं, पील्स, ठीक है, पत्तियाँ होती हैं दरख्तों की, तो वो सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? Such waste is decomposed by the bacteria and earthworms and it can safely be mixed with the soil and to make it fertile. So सबसे पहली इसकी खासियत क्या है कि it is decomposed by the bacteria very easily, ठीक है, by the earthworms and it can safely mixed with soil and it is very beneficial for the soil. Okay, so that's why that is safe waste. We can say that is safe waste. Look at this picture. There are some peels of fruits and vegetables, ठीक है, तो this is biodegradable waste because it can decompose easily. ये decompose क्या होता है? किसी चीज़ का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, ठीक है, by the bacterias, ठीक है, जब हम डेड हो जाते हैं, कोई भी चीज़ डेड हो जाती है तो उन्हें बैक्टीरिया डिकम्पोज करने लग जाते हैं। So next type of waste is non biodegradable waste. किस किस चीज़ का बना होता है? कंसिस्टेंस ऑफ थिंग्स दैट डू नॉट रॉट इजिली, मीन्स जो रॉट मीन्स गलना सड़ना, ठीक है, जो इजिली से, जहाँ आसानी से रॉट नहीं होती, गलती सड़ती नहीं है, एंड मिक्स विद द सॉइल, और इजिली सॉइल के साथ मिक्स नहीं होती, लाइक प्लास्टिक बॉटल्स। आपको चाहिए आप एक बॉटल 100 ईयर्स के बाद आप देखेंगे तो वो वहीं की वहीं पड़ी होगी, नो डाउट उससे हवा नहीं लेकर जाए, तो दे टेक 100 and 1000 ऑफ ईयर्स ऑफ टू डिकम्पोज, और वो डिकम्पोज होने के लिए सालों हज़ारों साल लेती हैं, ठीक है, तो जल्दी से गलती सड़ती नहीं है। दे कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट बाय क्लॉगिंग द ड्रेन्स। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जो हमारे ड्रेन्स होते हैं, मीन्स जो नाले होते हैं, गंदी नालियाँ होती हैं, तो उनमें ये फंस जाते हैं मेनली, तो जो गंदा पानी है वो आसपास के एरिया में चला जाने लगता है। और सबसे बड़ा नुकसान इनको एनिमल्स का है, जैसे जो हमारे एनिमल्स है खा लें तो उनके वो डेथ का कारण भी बन सकते हैं। So non-biodegradable waste cannot decompose easily and cannot rot easily. Clear? Look at this picture. This is non-biodegradable waste. क्योंकि ये हजारों सालों तक ये गल सड़ नहीं सकता, ठीक है। And then हम disposal of waste. अब waste को खत्म कैसे करें? क्या खत्म करें? पहले शहरों में जो वेस्ट मटेरियल को ठिकाने लगाना, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेस्ट को डिस्पोज करने की, वेस्ट को खत्म करने की। तो नाउ देयर आर द 4 मेथड्स ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट को डिस्पोज करने के, वेस्ट को खत्म करने की 4 मेथड्स हमारे पास हैं। नंबर फर्स्ट, बर्निंग, जलाना। बर्निंग मीन जलाना। तो वेस्ट इज कलेक्टेड एट वन प्लेस एंड बर्न, एक जगह पे पूरे शहर का जो कूड़ा करकट है वो इकट्ठा किया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है। बट इट इज़ वेरी हार्मफुल मेथड बिकॉज द बर्निंग ऑफ द वेस्ट कॉज एयर पोल्यूशन। इसके साथ जो एयर पोल्यूशन होता है, बहुत सारी हानिकारक जो गैसें हैं इससे बाहर निकलती है और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। देन सेकेंड मेथड इज डंपिंग। डंपिंग क्या होता है? वेस्ट फ्रॉम कॉलोनीज इज कलेक्टेड एंड कैरिड आउट इन ट्रक्स। जो कॉलोनीज का वेस्ट होता है उन्हें कलेक्ट किया जाता है एंड ट्रक्स में डालकर बाहर लेकर जाया जाता है। लुक एट दिस पिक्चर। तो दिस इज डंपिंग। दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड डंपिंग। तो इस तरीके से डंपिंग जो शहर का मेथड है, सिटीज में यूज होता है, बट दिस प्लेस इज and then it is taken to far away from the places and it is simply dumped। वहाँ पे फेंक दिया जाता है, वहाँ पे उतार दिया जाता है, ठीक है ना। सिंपली ट्रक्स में इकट्ठा करके लेकर जाते हैं और वहाँ पे डंप कर देते हैं, उतार देते हैं वहाँ पे, ठीक है। इट इज़ नॉट कवर्ड, ठीक है ना, ये कवर्ड भी नहीं होता है। बट दिस प्लेस इज ब्रीदिंग प्लेस फॉर द, या ब्रीडिंग प्लेस फॉर द मॉस्किटोज एंड जर्म्स। और जर्म्स और मॉस्किटो की ब्रीडिंग प्लेस होती है जहाँ पे वो पनपते हैं, जन्म लेते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑल्सो पोल्यूट द एनवायरनमेंट।
और ये प्रोसेस भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट ही करता है। लुक एट दिस पिक्चर शोज द डंपिंग ऑफ द वेस्ट, okay, that is also very harmful for the environment. Then third method that is also used in the cities, landfills. No doubt it is much secure method to dispose the waste, ठीक है। there are the deep ditches में टोए जो होती हैं, खड्डे पुट्टे जाते हैं वहाँ पे, which are dug in the ground and garbage is dumped in them, और उनमें गार्बेज को जो भर दिया जाता है, and then it is covered with the लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसके बाद सॉइल के साथ, अर्थ के साथ उसे ढक दिया जाता है। तो लैंडफिल इज वेरी कॉमन एंड पॉपुलर मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट इन द सिटीज, एंड इट इज सेफ देन द अदर मेथड्स डंपिंग लाइक, ठीक है। देन क्या होता है इसके बाद, तो दिस प्लेस इज यूज टू मेक गार्डन्स एंड पार्क्स, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर गार्डन या पार्क्स भी लगा दिए जाते हैं। इट इज प्योर मेथड। देन कंपोस्ट पिट क्या होता है, इट इज द मेथड दैट इज यूज्ड इन द विलेजेस, ठीक है। अ पिट इज डग इन द ग्राउंड, जो एक खड्डा है वो ग्राउंड में खोदा जाता है, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर, ये खड्डा जो खोद लिया गया है, ठीक है। तो वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट है, मीन लाइक किचन वेस्ट है, दैट इज डम्प्ड इन दिस पिट एंड आफ्टर सम टाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू द मन्योर। ये मन्योर के रूप में, मन्योर मीन्स खाद होती है, जो हमारे पंजाबी में कहते हैं इसे रूढ़ी की खाद, ठीक है ना। कंपोस्ट पिट का मतलब ये रूढ़ी है हमारी, जो ठीक है ना, हमारे गांव में, पंजाब के गांव में इसे रूढ़ी बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे वेस्ट को डंप कर दिया जाता है, धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाता है मन्योर में, एंड दिस मन्योर इज यूज टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। तो द मन्योर इज कंपोस्ट, मन्योर इज ऑल्सो कॉल्ड कंपोस्ट, ऐसी मन्योर को, ऐसी खाद को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। एंड द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन बाय यूजिंग दिस manure and compost, that crops are called organic crops, natural crops, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तरह की manure के रूप में यूज कर सकते हैं, क्लियर। देन देयर आर 3 R फॉर्मूलाज, ठीक है। तो 3 R's क्या है, व्हाट आर द 3 R's? तो 3 R's स्टैंड्स बाय रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। रिसाइकल, reduce and reuse, इनका मतलब क्या है? by applying the formula of 3 R's, we can reduce and we can easily protect our environment. First of all, recycling क्या होती है? तो we can make new things out of the waste material, हम वेस्ट मटेरियल से नई चीज़ें बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स है तो उनसे फ्लावर पॉट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मैनी सिटीज़ एंड टाउन्स हैव रिसाइकलिंग सेंटर्स, बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं मैनी सिटीज़ में, ठीक है। वहाँ पे जो पुरानी हमारी कबाड़ी ये इकट्ठी करके लेकर जाते हैं हमारी कबाड़ को या पुरानी चीज़ों को, तो वहाँ पे जाके फैक्ट्रीज में इनसे नया मटेरियल बनाया जा सकता है। लुक एट दिस पिक्चर, ठीक है। जो पुराना मटेरियल उससे वो नया मटेरियल तैयार करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। तो वाई रिसाइकलिंग, वी कैन रिड्यूस द यूज ऑफ द प्लास्टिक्स, वी कैन रिड्यूस द वेस्ट मटेरियल। देन रीयूज, दोबारा से यूज करना, उसी चीज़ को दोबारा से यूज करना। अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल आइटम्स सच एज द प्लास्टिक मग्स, ईटिंग यूटेंसिल्स एंड क्लोथ, शॉपिंग बैग्स। फॉर एग्जाम्पल हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ से नए बैग लेकर आने की वजह से हम अपने घर से एक बैग लेकर जाएं, ठीक है, जिसमें हम आए बार की शॉपिंग कर सकें, ठीक है। देन डोनेट योर ओल्ड क्लोथ्स, टॉयज एंड फर्नीचर। अपने जो क्लोथ्स होते हैं पुराने या टॉयज या फर्नीचर होता है वो डोनेट कर दो या अपने छोटे भाई बहन को दे दो, ताकि वो नए दोबारा से ना खरीदें और उनका यूज़ कम हो सके, ठीक है। यूज़ बोथ साइड्स ऑफ राइटिंग पेपर। अगर राइट करते हो पेपर में, कॉपी में, तो दोनों साइड यूज़ करो ताकि पेपर वेस्ट ना हो, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर्स, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन रीयूज द थिंग्स, ठीक है, दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। देन रिड्यूस होता है मीन्स किस चीज़ का यूज़ कम कर देना, किस चीज़ के यूज़ को कम कर देना, ठीक है। तो एनकरेज कारपूलिंग विद फ्रेंड्स, वॉकिंग, टेकिंग द बस, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो तो आप बस लेकर जाइए गाड़ी की बजाय। अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हो तो अपने नेबर्स को साथ में एक गाड़ी में बैठा कर लेकर जाएं। बाजार जा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी गाड़ी शेयर कर सकते हैं। सेव एनर्जी बाय टर्निंग लाइट ऑफ व्हेन नॉट नीडेड, ठीक है। जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप लाइट्स ऑफ कर दीजिए, फैन ऑफ कर दीजिए, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स
दैट डोंट हैव लॉट ऑफ पैकिंग, ऐसे प्रोडक्ट्स आप खरीदिए जिसकी पैकिंग ज़्यादा ना की हो, ठीक है। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। ओके, थैंक यू।